both of you were able to attempt all the questions nicely. तो मुझे नहीं लगता कहीं डाउट होगा, बट ऑफ कोर्स जब हम और एमसीक्यू और एक्स्ट्रा केस स्टडीज या प्रैक्टिस करेंगे, then you will be having a quite better idea. Yeah, so let's begin with the trigonometry. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बट वो होता क्या है उसके लिए पहले ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं. सो इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal with the measurement of angles and the problems allied with angles and triangles, right? So angles and related to the triangles, so that referred to the problems of trigonometry. So the first idea for sine function, we will be talking about that. So initially you can just go through the, it's just a screenshot from your NCERT textbook. So Aryabhatta, तो बात करी गई है नियरली आर्यभट्टा in AD 500, right? So then he used the word ardhya, and that is for the half chord or jaya, jiva. So something like that. Some Sanskrit words are involved. So this has been a course of study for thousands of years, right? And then we had some more notations and development जो आज से 500 साल पहले हुई है. As you can check it out, an English professor, Edmund Gunter, he first used the abbreviated notation sine. So उससे पहले चीजें पता थी mainly to Indian mathematicians and Vedic experts जो होते थे, बट उसके बाद जो टर्म्स की बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी की, वो कोसाइन, टेंजेंट, इनके बारे में टर्म्स में बाद में बात करी गई. और फिर उसके बाद तो देर आर लॉट मैनी डेवलपमेंट और कंप्यूटर्स आ गया, और फिर इसकी एप्लीकेशंस जो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, दैट इज पर्टिकुलरली जो हम 10th में बात करेंगे, दैट इज सीन इन आवर हाइट एंड डिस्टेंस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, measuring the heights, measuring the depth of sea, right? And certain distances, the height of a building. So all these kind of a things, even let's say there is Mount Everest, right? So we know Mount Everest is approximately 8 kilometer in height, but of course how is it feasible and possible to measure that, the big height of Mount Everest? Or you consider any building, right, in which you stay. So what is the height of a building? Without actually taking the inchy tape or scale and measuring that, we are going to learn the methods, and they will be requiring the use of trigonometry. Using that and basic idea of the angles, we will be able to get the heights, depth, and a lot many other things. But that is the applicative part of trigonometry, which we are going covering in semester 2. So semester 1 में basic idea रहेगा about trigonometric ratios. In short, I will be calling them as T ratios, trigonometric ratios. And remember, there is a very important word here, ratios. Ratios are, say, A by B. This is a fraction which is always positive. रेशो कभी भी नेगेटिव हमको पता है, हम नहीं लेते हैं. सो से 2/3, so that we call as say 2:3. so this is a positive ratio. so किसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं? ऑफ एन acute angle of a right triangle. Now this is again very important. Up to class 10th, we will confine our course of study to a right angle triangle only. Only a right angle triangle will be given to me, and in that right angle triangle, look at this diagram. If I say this is my angle theta, this is the notation. ये आपको थोड़ी लिख के प्रैक्टिस बनानी है. And what is this? थीटा. प्रोनाउंस करा है, ये थीटा कहेंगे इसको, एंगल को. इवन समटाइम्स यू विल फाइंड कि हमारे पास कुछ अलग नोटेशंस भी आने वाली हैं, जिन्हें हम कहेंगे से अल्फा, गामा, बीटा फॉर द एंगल्स. सो दिस इज अल्फा, ये प्रैक्टिस करनी है नोटेशन की आपको. दिस इज द नोटेशन जिसको हम कहते हैं बीटा, एंड दिस इज रेफर टू एज गामा. In physics also we do talk about alpha rays, beta rays, gamma rays.
and the similar terminologies for the angles will be used. So anyway, ये triangle है, right angle triangle ABC, wherein angle BAC is theta. In this triangle, check it out, if this angle is 90 degree, I will call this as base. और ये क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल के लिए हम इसको कहेंगे इसका परपेंडिकुलर. एंड ऑफ कोर्स AC क्या हो गया, आई एम श्योर ये तो कॉमन टर्म है, आपको पता ही है, Yes, sir. हाइपोटेन्यूज. इवन विद द रिजल्ट पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर. ये पता है आपको, Yes, सेवन sir. में यूज कर लिया था हमने, 7th 8th में भी, राइट. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर. ये तो चलो हमें यहाँ एक रिजल्ट पता था, बट मेन अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर किसे कहेंगे एंड हाइपोटेन्यूज किसे कहेंगे. तो जस्ट फोकस ऑन hypotenuse AC. This is perpendicular and this is base. Sometimes I will take this as base, BC. BC may also be taken as base, but वो कब होगा, जब ये वाला एंगल मैं थीटा ले लूंगा. So it all depends on the angle थीटा, कि थीटा अगर मैंने यहां लिया है एंगल CAB, तब बेस मेरा होगा AB के इक्वल. और अगर मैं ले लेता हूं थीटा यहां पर, इफ दिस इज थीटा और ये नहीं है, इन दैट केस परपेंडिकुलर एंड बेस विल इंटरचेंज. रिमेंबर दिस थिंग. तो अभी तो मैं बहुत सिंपल केस ले रहा हूं, ये बेस हो गया मेरे पास और ये है परपेंडिकुलर. नाउ वी डिफाइन. अब कुछ चीजें हैं जिसमें आपको स्टार्टिंग में कहता था कि याद करना पड़ेगा, तो वो क्या चीज हो जाती है यहाँ पर, वी आर डिफाइनिंग द फॉलोइंग. we define the following ratios which are known as trigonometric ratios. Sine theta, this is not a product of sine into theta, this is just a notation. So I cannot say this is sine into theta, और साइन थीटा एक्चुअल में होगा ऐसे लिखा जाएगा, पढ़ा क्या जा रहा है साइन थीटा, चाहे देखने में लग रहा है सिन थीटा, बट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस साइन थीटा. अब ये क्या है, इस राइट ट्राइंगल में फोकस ऑन द ट्राइंगल. इन दिस ट्राइंगल द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज डिफाइंड एज साइन थीटा. तो साइन थीटा अगर मैं एक्स और वाई या आर की टर्म में बात करूं, तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय r. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज कोसाइन ऑफ थीटा, बट हम इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में वो क्या हो गया, cos थीटा. सो दिस वे वी रीड दिस cos थीटा. और cos थीटा कैसे डिफाइन करा गया है, base by hypotenuse. So in this triangle it will be x by r. Similarly, tangent theta, which is in short written as only tan theta, and this is defined as perpendicular by base, which is simply y by x from this particular triangle. अगर आप ध्यान से यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, तो जो ये साइन थीटा लिखा था ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये P और ये H, लुक एट द ओनली फर्स्ट वर्ड. तो साइन थीटा क्या हो गया, P बाय H, ये B एंड दिस इज H.
तो ये क्या होगा, बी बाय एच। व्हाट इज दिस, tan थीटा। P by तो आप अपने P आप by B. ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आ गया P बाई बी। लुक एट दिस, तो परपेंडिकुलर और बेस तो मेरे कीवर्ड है। तो इफ इट इज एनी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया P बाय बी। ऑल्सो कंसिडर द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल देखें, जिसे हम नाम देने वाले हैं एज दी कोसीकेंट। तो आप चेक करिए, कोसेक थीटा बोलेंगे इसे, पूरा नाम तो ये है कोसीकेंट थीटा, बट शॉर्ट में आप क्या बोलने वाले हैं ना ऑन, कोसेक थीटा। और ये क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। नोट केयरफुली, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया है, Yes, sir. रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल होने का मतलब ये क्या हो गया, हेयर एच बाय पी। सिमिलरली क्विकली चेक इट आउट, जब हम नेक्स्ट बोलते हैं सीकेंट थीटा, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे सेक थीटा, एंड इट इज दी एक्चुअली किसका रेसिप्रोकल हुआ है। The B by H का. तो आप चेक करिए, यहाँ पर अर्जुन क्लियर हो रहा है यस सर। सर ये, ऐसे ही सर नेक्स्ट का भी थर्ड का ऑपोजिट होगा। यस। तो और लास्ट में आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या आया भाई, को टेंजेंट। पूरा वर्ड तो को टेंजेंट है, बट शॉर्ट में को टेंजेंट को हम बोलते हैं कॉट थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो वो यहां क्या था, b बाय p। सो दैट इज आवर बेसिक फंडामेंटल आइडिया हेयर। यस सर। Yes, sir. So we have a clear-cut reciprocal relation as we observed just now. Cosecant क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। Secant is cos का रेसिप्रोकल। Cot is tan का रेसिप्रोकल। एंड ऑफ कोर्स अगर फर्स्ट वाले को फिर से देखो, अगर ये रिलेशन ट्रू है, आई कैन ऑल्सो से क्रॉस मल्टीप्लाई से साइन थीटा क्या हो गया, 1 बाय कॉसिकेंट थीटा ऑल्सो। सेकेंड वाले से मैं क्या कह सकता हूं, कॉस क्या हो गया, 1 बाय सेक थीटा, और इससे tan थीटा सर tan थीटा इक्वल्स 1/cot थीटा। कॉट थीटा। इनफैक्ट अगर आप एक, मैं पीछे वाले पेज पे आता हूं, इस चीज को अगर ध्यान से देखें, ये जो पी बी और इसकी टर्म में लिखा है, आई एम राइटिंग वन थिंग जिस विच इज दिस इज मिनोमिक, द वे हाउ यू कैन लर्न। लर्न का मतलब क्या लर्न करना, पहले वाले को अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये पहला पहला पी बाई एच लिखा है, और यही था मेरा पी बाई एच एस साइन। तो ऑर्डर में एक तो देख लो, साइन कॉस टेन, हमेशा उसी ऑर्डर में आप याद कर रहे हैं, साइन कॉस एंड टेन। फॉर सेविंग द टाइम मैं अगर साइन बोल रहा हूं तो ओके, बट अदरवाइज इट शुड बी स्पोकन इवन एज साइन थीटा। तो साइन थीटा है पी बाई एच। नेक्स्ट वाले को अगर मैं हाईलाइट करूं, वो ही आ रहा है बी बाई एच सेकेंड सेकेंड, और थर्ड वाले को देखूं तो पी बाई बी, पी बाई बी, राइट। और इसे याद करने के लिए किसी ने करा है ट्रिग्नोमेट्री, तो पता है क्या लिखा है, ये इसको कैसे याद करते हैं, दिस इज समटाइम्स। हाँ No, sir. अच्छा चलिए, सो इसको याद करने के लिए कैसे करा जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिस वे आई वॉज टॉट, इवन माई टीचर्स वर टॉट, और ऐसे और भी अलग अलग इसके लिए
मिनोमिक्स बनाए जा सकते हैं। तो यू मे हैव योर ओन वे टू लर्न इट, बट जनरली जो यूज करते हैं, जो बोलते हैं, वो यही है, ताकि इजीली याद हो जाए लिखने में ना। जैसे ऊपर की लाइन को पढ़ो जरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो दैट वे यू कैन क्विकली लर्न दिस। और लर्न करने से इस रूल से क्या हो गया, मुझे साइन कॉस और टैन क्विकली याद हो गए। एंड व्हेन आई कंसीडर द रेसिप्रोकल ऑफ द सेम, मतलब अब नीचे से ऊपर पढ़ो, h बाय p आ गया मेरा नेक्स्ट रेसिप्रोकल विच इज कॉसेक। फिर h बाय b रेसिप्रोकल, और ये हो गया सीकेंड थीटा, और b बाय p क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। डन। यस सर। क्विक रिव्यू देख लीजिए एक बार। सर यस। सर मेरे को ना एक चीज थी सर, मेरे को एक बार मम्मी ने बताया था कि उसके आगे का होता है सोना चांदी तोले। हाँ, ऐसा भी इसमें बोला जाता है, बिल्कुल। यस। वो ओके कहाँ सर। लिंक हो रहा है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट आई हर्ड यस, क्योंकि बस मेन सर काम। वो बताया था सर, साइन कोसाइन और सर टैंजेंट में बोल रहा है सर, उसके एस सी और टी। ओके, राइट, चलो गुड। तो दिस इज अ बेसिक समरी। ये तो चलो हमें समझ आ ही गया है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मेन। फिर मैं ये चीज बता रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन द एंगल थीटा एंड 90 ये है, तो ये जो है ये मेरा होगा बेस हमेशा। तो डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली इज माय बेस। अगर ये बेस है तो ये ऑफ कोर्स मेरा परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर के लिए शॉर्ट में आपको पता है ना, हम ये ऐसे लगा देते हैं, यू अवेयर ऑफ दैट। तो दो लाइंस यस ऐसे सर। Yes, sir. 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर की बात हो रही है। एंड इन दिस केस इस डायग्राम में देखकर ये भी समझ आ रहा है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए वो एक्चुअल में मेरा बेस होता है, एंड साइड अपोजिट टू एंगल ए ऑफ कोर्स वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर, सिंपल है ये। यस सर। Yes, sir. बट साथ में एक मिसकंसेप्शन क्या हो जाती है कि साइन -2, मान लो ये लिखा है, तो ये कह दिया मैंने 1/sin²θ। दिस इज रॉन्ग। वेरी फर्स्ट थिंग, ये नोटेशन ही डिफाइंड नहीं होती है, पावर में ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है। सेकंड थिंग, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स साइन थीटा को साइन इनटू थीटा एज्यूम कर लेते हैं, विच इज अगेन एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये एक फिक्स नोटेशन है, साइन थीटा, दैट्स इट। तो उस तरह से आपको समझना है। नाउ ऑब्जर्व दैट, आपने अपने अभी ये देखा था ना ये, यस सर। राइट। सो अब अगर आप tan थीटा की बात करते हैं, तो डोंट यू थिंक, एक मिनट, tan थीटा, व्हाट इज माय sin थीटा, पहले वो सोचें। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज माय cos थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आप अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो मुझे साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या मिलेगा, दोनों को डिवाइड करा, एच से एच कट जाएगा, ये एच कैंसल, पी बाय बी। एंड व्हाट इज पी बाय बी, isn't it our third tan theta? Yes, sir. So tan theta is actually sin theta by cos theta. थ्रू आउट अप टू 10th हम यही लिखेंगे, फॉर एनी एक्यूट एंगल। जबकि अगर एंगल एक्यूट नहीं भी हो, ऑब्ट्यूज एंगल भी है, इवन देन दिस रिजल्ट होल्ड्स ट्रू।
but that will be dealt in 11th and 12th. सिमिलरली cot थीटा अगर आप ध्यान से देखें तो वो tan का रेसिप्रोकल हो गया और वो हो गया cos थीटा बाय sin थीटा. फॉर प्रूविंग मैनी रिजल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. एंड थर्ड वन समझ आ रहा होगा ना, अगर आप इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दो, बस tan इंटू कॉट कर दो, ऑब्वियसली 1 आ जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? tan थीटा मैं इस Yes, sir. यस. अच्छा, अब एक चीज चलो और बताइए मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा? व्हाट इज दिस वैल्यू? चेक इट आउट. cosec थीटा क्या बताया था? Isn't it the reciprocal of sin theta? चेक आउट योर फार्मूला. आपने लिखा नहीं लिखा? ये तो बेसिक फार्मूला है. अगर ये भूल गए, ये देखो, ये आप प्लीज ये लिख लीजिए, ये तीनों को कम से कम ये लिखिए पहले, क्योंकि इनको ही आई एम गोइंग टू मेक रिपीटेड यूज ऑफ दीज. डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो अब आप चेक करिए, cosec थीटा था 1 बाय साइन थीटा, ये साइन से साइन कैंसल, आ गया ये 1 के इक्वल. Similarly, now if I ask, what is secant theta into cos theta? Secant, Secant theta into cos theta. Sir, secant theta is reciprocal of cos theta. 1 by cos theta. 1. so obviously ये फिर से कैंसल एंड दिस इज इक्वल टू 1. क्यों? और सिंपल सोचो, secant थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, हेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने का मतलब उनका प्रोडक्ट शुड बी ऑलवेज 1. सेम वे ये भी समझ आ गया होगा, tan एंड cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो tan इंटू कॉट की जब बात करेंगे तो tan और cot is actually reciprocal of tan. Again it's 1. फॉर एनी acute एंगल थीटा, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1. आप पहले इस रिजल्ट को नोट करिए, तीनों पार्ट्स, एंड देन आई एम गोइंग टू प्रूव इट, क्योंकि ये आपको आना चाहिए. एग्जाम में तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क, बट आई फील कि ये आपको पता होना जरूरी है. नोट करिए, देन आई विल स्टार्ट. नोटेड? Yes, sir. ओके. चेक करिए, जैसे हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं,
मैं इस रिलेशन को जस्टिफाई कर रहा हूं कि वाई दिस इज ऑलवेज वन. वाई? कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल. If I say this is angle theta and say this is A B C. अच्छा, मैंने वो डायग्राम वहां लिया ही हुआ था, तो आप चेक करिए. उसी डायग्राम को मैं अगर ले लेता हूं. सो इन दिस ट्राइंगल व्हाट इज साइन थीटा? बताइए. एक्स वाइज आर की टर्म में वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड साइन क्या होता है. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पहले वाला साइन के लिए होता है, मतलब P बाय एच. तो व्हाट इज परपेंडिकुलर हेयर? इजंट दिस इज परपेंडिकुलर एंड थीटा और 90 के साथ ये बेस है मेरा और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है. तो व्हाट इज दिस? y बाय r. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. both of you. यस सर. अभी व्हाट इज cos थीटा इसी ट्राइंगल में? सर बी बाय एच. हाँ, cos होता है b बाय एच और एक्स वाई और r की टर्म में बोल दो सर एक्स बाय आर. बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है. अब क्या करिए आप, ये फर्स्ट रिलेशन ये सेकंड, दोनों रिलेशन को स्क्वायरिंग एंड ऐड कर दो. स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करा और क्या ऐड कर दिया? इसका स्क्वायर. एलएचएस ले लिए. आरएचएस में क्या लिखा जाएगा? इजंट इट वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर और फिर इस नीचे वाले का स्क्वायर और ऐड कर दिया. Squaring and adding both the relations. Is it okay? यस सर. Yes, sir. अब एलसीएम में ऑफ कोर्स आर स्क्वायर आएगा, ऊपर आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इस ट्राइंगल में जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाना. पाइथागोरस थ्योरम से मुझे ऑलरेडी क्या पता है? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. ये पता है. तो न्यूमरेटर में यहाँ नीचे क्या लिखा गया था? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज एक्चुअली आर स्क्वायर ओनली अपॉन आर स्क्वायर. यस सर. आर स्क्वायर कैंसल. आ गया ये वैल्यू 1 के इक्वल. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. हेंस प्रूव्ड. दिस इज अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट. अब आप चेक करिए. नाउ आई ऑलरेडी हैव लर्न, प्रूव करवा दिया और इस रूल को याद कर लिया. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. यूजिंग दिस रिजल्ट, इसे और इसे अब हम एक लाइन में देखो कैसे प्रूव करने वाले हैं. Sir, how can we prove, sir, with one line only?
या एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। ओके, वो नेटवर्क चला गया था। शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। ओके, सो चेक इट आउट। कहाँ तक कर लिया था? प्रूफ हो गया था? Yes, sir. यस सर। सर वो tan और सर cot का प्रूफ बचा था। ओके, चेक करो, ये रिजल्ट हमें पता ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। अब Yes, sir. डिवाइड कर दो बोथ द साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों तरफ मैंने बस कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। लुक केयरफुली, ये कैन आई राइट दिस एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर Yes, यस sir. सर। प्लस 1 is equal to, what is this, 1 by cos theta का whole square? Theta का whole square. Can you tell me what is this sine by cos? Check out your formulas अगर अभी याद नहीं। 1. नहीं, 7. अरे sin theta by cos theta, tan theta। अर्जुन, देखा फार्मूला लिस्ट में लिखे या नहीं लिखे? सर लिखे थे सर, मैं अब सर देख ही रहा था। हाँ, लोकेट करो इसे। ये where you have written sin theta by cos theta and this is 1, oh sorry, this is tan theta। तैयब हो गया? Yes, sir. सर वो और मैं उसे cosec theta समझ लिया। ओके, what is 1 by cos? cos का सर sec थीटा। गुड, sec थीटा, और इसका होल स्क्वायर। बस अब क्या मैं इसे tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और 1 को पहले लिख दो, तो 1 पहले लिख दिया, फिर ये आ गया tan स्क्वायर थीटा, और ये आ गया secant स्क्वायर थीटा। गॉट योर सेकंड फार्मूला का प्रूफ? यस सर। Yes, sir. क्विकली चेक आउट, अब आप करके बताइए। अगर मुझे इसका प्रूफ करना है तो मैं इस रिलेशन से स्टार्ट करूंगा, और डिवाइड कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से बोथ द साइड्स। करिए, 2 स्टेप्स बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे। आई एम वेटिंग। यस सर डन। ये अब देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 आ गया। ये यस क्या सर। हो सर गया? 1 सर cos स्क्वायर। कॉस बाय साइन, अब याद हो cos जाएगा स्क्वायर। धीरे धीरे। कॉट होता है माने इसका स्क्वायर आ गया, और यस सर। साइन का रेसिप्रोकल से कॉसिकेंट। cosec। तो एक बार अगर मैंने इनके प्रूफ करने का मेथड सीख लिया, क्या होता है कई बार आपको ना एग्जाम में पहला फॉर्मूला तो चलो अच्छे से सबको याद हो जाता है, sin square plus cos square is 1। Sometimes I have seen student forgetting the second and third, वो प्लस 1 यहाँ है, तो वो कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। इसीलिए प्रूविंग को एक बार देख लिया,
Hardly it will take 10 seconds to get the other remaining two formulas. Right. अब ओके सर। जरा मैं इन तीनों फार्मूलाज को कंबाइन करूं। कंबाइन का मतलब इफ आई कंसिडर वन की टर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हमने देखा था, वन। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, सेकेंड फार्मूला से वन की वैल्यू क्या आ रही है, isn't it secant square theta minus tan square theta? रीअरेंज। अरे भाई ये tan स्क्वायर को राइट यस सर। ले आओ। Yes, sir. सर आई वाज राइटिंग। और थर्ड वाले फार्मूला से वन की वैल्यू क्या है, सर cos सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। राइट। तो आपको वन की टर्म में भी ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो जैसे ही कहीं एक्सप्रेशन दिखाई दिया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, दैट इज वन। देखो थीटा तो हमने एंगल लिया है, हो सकता है वो एंगल y हो, r हो, z लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इट हार्डली मैटर्स। तो अगर मैंने कहा ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, और आई कैन से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज वन, और आई कैन से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो नोटेशन है एंगल की, वो कुछ भी हो सकती है। बेसिक फंडामेंटल आइडिया ये आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इस फॉर्म को ओके भी सर। नोट कर लीजिए क्विकली, आई एम वेटिंग। सर डन सर, आई वाज राइटिंग साइड बाय साइड। Yes, sir. I have also done. अब इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। गिवन tan a 4/3, find the other t ratios of the angle a. Check this out. tan a, ऑब्वियसली हम एक राइट ट्राइंगल सोचते हैं, राइट। और इसमें tan a का मतलब ये एंगल जो है इसे एंगल a कह दिया गया है, राइट। जो मेरा थीटा होता था वो a है, हार्डली मैटर। और अब आप बताइए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, सर परपेंडिकुलर सर बाय बी, b बाई b होता है। तो इस बेस। ट्राइंगल में ये 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस 3 हो जाएगा। Four by. तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, ln कितना आ जाएगा, सर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। रूट भी तो आएगा। सो दिस इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 4 5, isn't it? ये तो याद होना यस चाहिए सर। पाइथागोरन यस। ट्रिपलेट इस फॉर्म में। In fact, there are, I would recommend 5 main Pythagorean triplet. Pythagorean triplets जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 3 4 5, नेक्स्ट 5 12 5 13, 12 13। 6 8 10, 7 पता है 24 25, 8 15 17, 9 40 41। तो ये मिनिमम या चलो मैक्सिमम ही कह लो, ये 6 आपको याद होने चाहिए। और इस केस में क्या चीज मेन इंपॉर्टेंट मेरे लिए है, ये हाइपोटेन्यूज है, लास्ट में जो लिखा है लार्जेस्ट वैल्यू, दिस इज रेफरिंग टू दी हाइपोटेन्यूज। ओके सर। 3 में से अगर आपको कोई भी 2 पता है, यू कैन इजीली टेल द थर्ड वन। ठीक है,
तो ये चलो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, ये रहा 3 4 5 लेबल हो गया। अब आप जरा मुझे बताइए व्हाट इज साइन थीटा, साइन ए, यहाँ तो एंगल ए है ना, साइन क्या होता है? इट इज पी बाय एच। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज पी हेयर? Sir, 4. 4. बाय 5। आंसर। आपसे अदर टी रेशियोज पूछी हैं तो चेक करो, ए गिवन थी, कितनी बच गई थी? टोटल कितनी टी रेशियोज हमने स्टडी करी हैं? Sir, 3. 6 करी हैं। Yes, sir. साइन कॉस टैन और उनके रेसिप्रोकल ऑल्सो। ठीक Yes, है, sir. राइट। तो अगर साइन ए लिख लिया, चलो मैं कॉस ए की बात कर लेता हूं। कॉस होता है So बी B बाय, by H. कितना हो गया? Sir, 3 by 4. Oh, so sorry, 3 by 5. 3/5। टैन ए आपको दिया ही हुआ था। तो अब आप सोचो, अगर साइन ए लिखा गया है, मैं सिर्फ इसका रेसिप्रोकल कर दूं, आई विल गेट कॉसेक। मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, आई विल गेट दिस। Yes, sir. और tan ए किसके इक्वल मुझे गिवन था? 4/3। 4/3. इसका रेसिप्रोकल कॉट होता है। Yes, sir. Yes, sir. Exactly. सो व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड, मुझे टोटल 5 अलग अलग क्या क्या चाहिए थे? ये लो, साइन आ गया, कॉसेक Cosec, आ sir, गया, cos, sec, कॉट आ गया, and the cot. सेक आ गया, एंड कॉट आ गया। आई गॉट ऑल 5 रिमेनिंग टी रेशियोज। ये राइट साइड में जो मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखे हैं, इसे नोट करो अलग से, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस्ड आने वाले हैं, तो क्विक होना चाहिए रिस्पांस। Sir, can you tell sir 7 and 24, sir, what is the last term? 25। Okay. Okay, sir, done. या Yes, sir. Done. नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, Sir, the answer is sir 8, 15, and sir 17. ट्राइंगल, यस, बट ट्राइंगल की टर्म में बनाकर टी रेशियोज पूछी है ना, तो टी रेशियोज Yes, sir. बताइए आप। ड्रॉ द डायग्राम ट्राइंगल की टर्म में। Sir, done. Yes, sir. Done.
So the value of cos is 15 by 17 and so tan is 8 by 15. Sir, you are muted, sir, if you are speaking something. हाँ हाँ, वो मोबाइल नेटवर्क से उससे ज्वाइन करा ना, फोन से, तो फोन आया कोई, उससे एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलिए, चेकआउट नाउ। इज द स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. ठीक है। हाँ, नाउ तैयब आ गया। चलो ठीक है, थोड़ा नेटवर्क आज प्रॉब्लम दे रहा है। लुक Yes. एट दिस, साइन ए है 8/17, और आपको पता है साइन क्या होता है? p/h, 8, Yes, sir. 17। एंड एज यू राइटली चेकड आउट, वो याद कर लिए मैंने, पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर, तो मुझे क्विक पता है ये कितना हो जाएगा, 15। बस ना साथ में आप कम से कम ये लिख लो कि ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। रीजन, अब आप स्टार्ट करो सारी वैल्यूज लिखनी। साइन से Yes. रेसिप्रोकल क्या है इसका? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस? साइन का रेसिप्रोकल Sir, cosec. कॉसेक। यस, तो लिखेंगे कॉसेक ए। Sir, I found the values. Sir, हाँ, cos is 15 by 17 and sir tan एक is 8 आराम by से रख 15. कॉस ए कितना हो जाएगा? पेपर में आपको पूरा लिखना है, बी बाय Okay. एच, विच इज, So बताओ। 15 by 17. और इसी से इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, विच Sec इज A. सेक। So which is 17 by 15. नेक्स्ट, So tan, tan A. So which is P by B. So equal to 8 by 15. And और then sir cot A equals 15 by 8. हो गया था ये? Yes, sir, मेरा हो गया था। ठीक है, तो दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, आई विल नॉट डिस्कस वेरी सिमिलर क्वेश्चन। ड्रॉ द डायग्राम और सोचिए। इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी, ये देखो, ये एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल्ड एट बी कहा है, तो यहाँ बी बनाना। चलिए, ए और सी इधर लिख लेता हूँ। ए बी इज 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 12 सेंटीमीटर, तो ऑफ कोर्स ए सी कितना हो जाएगा? So 13. अगेन अ क्विक, क्योंकि हमने याद रख लिया है 5, 12, 13 एज अ स्टैंडर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब आप क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो, क्या क्या पूछा है। साइन ए एंड सीकेंड ए है पहले पार्ट में, बट बाद में सी की टर्म में है, तो कुछ तो डिफरेंस आएगा। Yes, पहले sir. मैं अगर एंगल ए के रेफरेंस में निकालना चाहता हूं, तो ये मेरा मेन एंगल काउंट होगा, एंगल ए यहाँ हो गया ना। तो इसके केस में आप बताइए बेस किसे लेंगे, ए बी होगा या बी So सी 5, होगा? AB. 5, तो ये मेरा बेस होगा, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो And then चलो ठीक। hypotenuse. तो नाउ व्हाट इज द आंसर? साइन होता है p by h। So व्हाट इज 12 दिस? by 13. So 12 by 13. एंड सीकेंड ए क्या होता है? सी। So हर 13 by 12. यस, हर बार हमें ये नहीं कि मैं पहले कॉस को सोचूं, आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और व्हाट इज हाइपोटेन्यूज?
What is base? Answer. अब जब मैं बात करूंगा C की टर्म में, then what is important Sir, here? C would be. Sir, C as main angle. तो अब अगर ये है तो मेरे पास बेस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, And sir, hypotenuse हाइपोटेन्यूज is same. रिमेन्स दी सेम, राइट। तो अब अगर मैंने बात करनी है साइन सी की, फार्मूला तो वही है बट अब चेंज हो गया था मेरा परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज साइन सी? Sir, 5/13. एंड secant सी? So 13/12. डन। Yes, sir. सिंपल विजुअलाइजेशन, बट किस एंगल के रेफरेंस में बात करी गई है वो डिसाइड करवाता है कि मेरा बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे। Okay, sir. So the first part is equal to 1. ओके, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो मुझे इसमें कोई वैल्यूज पुट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे याद है इट्स cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, गारंटेड द आंसर विल बी 1 ओनली। हाँ, सेकंड पार्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, तो चलिए हम दोनों ही वैल्यूज से अगर चेक भी कर लें। ये सारी वैल्यूज गिवन है। कैन यू टेल मी व्हाट इज AC? ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, AC विल बी अंडर द रूट, Sir, AB AB square minus BC square. सो व्हाट इज दिस? वन वे आप दोनों स्क्वायर्स को लिख लीजिए, नहीं तो दिस इज A प्लस बी इंटू A माइनस बी, और Yes, ये sir. क्या दे देगा? 50 इंटू कितना आ गया? 8. 8। कितना आ गया आंसर फाइनली? Sir, 400. The root 420. 20। तो ये वैल्यू आपके पास 20 है, तो 20, 21 एंड 29। अगर आप चाहो तो इसे भी 20, 21 and 29. Of course, there is no end to this list. Infinitely many Pythagorean triplets की हम बात कर सकते हैं, तो वो तो बहुत मिलने वाले हैं आपको 60s में, 100s में एंड सो ऑन। तो वो सारे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि निकालना भी मेरे लिए बहुत आसान है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को। ठीक है, तो चाहो तो इसे इस लिस्ट में ऐड कर लो और यू फाइंड इट जस्ट इन अ 1 मिनट। Okay, sir. ठीक है, ये आ गया। अब एंगल थीटा मेरा ये है, तो मैं इसके साथ पहले लिख लेता हूँ बेस, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा? AC क्या हो गया? परपेंडिकुलर, Sir, AC perpendicular. and of course this is hypotenuse. Here I will only find cos theta and sin theta. cos होता है P by H, ये P by H, base by hypotenuse, P by H. Sir, So 20/29. 20/29. Once I have written this first part, आप चेक करिए, आंसर तो चलो हमें पता चल चुका है, बट स्टिल इवन यू कैन चेक इट आउट। आपको करना क्या था?
ये वैल्यूज को पुट, नोट Yes, sir. केयरफुली। ये सर आंसर आ गया सर 1। आ गया ना, क्योंकि ये दोनों के एलसीएम में ये आएगा और न्यूमरेटर बाई पाइथागोरन ट्रिपलेट यही था, हेंस वी जस्टिफाई दिस आल्सो। सेकंड वाले पार्ट में बस आपको वैल्यूज रख के सॉल्व करना रहेगा, तो दैट इन योर होमवर्क। सर एक डाउट था। यस, सर अगर जैसे सर अगर हमें वापस ये क्वेश्चन पूछे सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सिन स्क्वायर थीटा, तो सर वैल्यू सेम रहेगी या फिर सर सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिन स्क्वायर थीटा की रहती है? सिर्फ वो 1 के इक्वल होता है। cos स्क्वायर ओके सर। थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा हमें नहीं पता, वो तो वैल्यूज ओके पुट सर। करके ही पता चलेगा। फार्मूला सिर्फ प्लस के लिए एक्चुअली हमने देखा है और जस्टिफाई भी किया है, ठीक है। ओके सर। इनफैक्ट अब 11th में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, पर वो सब चीजें बाद में आएंगी, तो आई विल नॉट डिस्कस दैट, वो 11th की चीजें हैं। In a right angle triangle, right angled at B, ये right angle at B दिखा दिया। If tan A is 1, अब इसे ध्यान से, tan A is 1, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, यस और सर। ये एक तरह से क्या होता है, सर पी परपेंडिकुलर बाय एच, पी बाय बी। P by B। बट याद रखो यहाँ A के रेफरेंस में है, तो ये हो गया मेरा बेस, दिस इज यस माय सर। बेस, एंड व्हाट इज, ओ सॉरी, दिस इज माय बेस हो गया, हाँ, और ये परपेंडिकुलर है, तो वो 1 1 है। आर यू गेटिंग दिस, यही आएगा ना 1 and 1। यस सर। यस सर। सी लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो मैंने 1/1 लिखा है 1 को, क्या मैं इसे x/x लिख सकता था? Why to consider the ratio as 1/1? आप 1/1 को 2/2 भी तो लिख सकते थे, 3/3 भी तो लिख सकते थे, एंड सो ऑन, राइट। तो सिंपल केस करने के लिए मैंने 1/1 लिख दिया है, जबकि ये x/x एक्चुअली जब आप बुक में देखेंगे तो इस तरह से लिया गया है, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कहाँ ओके इम्पैक्ट सर। पड़ेगा, दैट अगेन आई विल डिस्कस। चलो अभी के लिए तो सिंपल है, ये आ गया p यस सर। 1 और ये 1, तो अब आप चेक करिए AC कितना हो जाएगा, अंडर द रूट, सर ए बी स्क्वायर माइन प्लस बी सी स्क्वायर। मैं सर ना इट वुड 1 बी। स्क्वायर कंसेप्चुअली, प्लस 1 स्क्वायर। आई वांट टू गो कंसेप्चुअली राइट, तो मैं इसलिए इसको x/x कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कई बार एग्जामिनर को ये कोई भी ऑब्जेक्शन 1% उठा दे कि भाई आपने 1/1 क्यों लिया है, व्हाई नॉट टेकन देम एज x and x, तो लेट मी टेक दिस एज x and x। तो ये कितना आ गया, x² + x², यस सर। 2x² which is √2 into x, यस ठीक है। सर। इसका मतलब ये x है, ये x है, तो ये आ जाएगा √2x। ओके सर। अब आप चेक करिए, आपको वेरीफाई करना है ये रिजल्ट। नाउ इस ट्राइंगल में आप मुझे पहले बता दो व्हाट इज साइन ए एंड कॉस ए। साइन क्या है इस ट्राइंगल में, p/h, cos is यस सर। p/h, बी बाय what is एच। p/h, x by √2 सर x, एक्स बाय टू एक्स, टू रूट टू एक्स।
1/√2 yes sir. cos A कितना आएगा? Sir, x by root 2x. अगेन Sir, द this सेम is the yes sir. 1/√2. बस अब Yes, आप कंसिडर कर लीजिए LHS 2 sin A cos A. करें एक बार इनकी वैल्यूज पुट. व्हाट इज sin A? ये रहा. Sir, 1 by sir. root 2. 1 by root 2. व्हाट इज cos A? Sir, 1 1 by by root root 2. 2. √2 into √2 2 होता है, That's 2. which is 1 Yes, sir. equal to RHS. यही तो लाना था. Hence verified. Okay sir. Yes, sir. This is a logical question. लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, होमवर्क में आप करेंगे. कह रहे हैं इन अ ट्राइंगल एंगल बी इज 90 डिग्री एंड ए बी दिया है 7 एंड ए सी माइनस बी सी 1 दिया है. तो आप इससे जरा ध्यान से सोचिए ए सी कितना आ जाएगा. बेसिकली बी सी प्लस 1. Yes sir. तो अगर मैं बी सी को x कह दूं, बी सी को x कह दिया, तो व्हाट विल बी ए सी? Sir, x plus 1. क्लियरली x प्लस 1. Yes, sir. कैन यू फाइंड x? पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा. Yes sir. ओपन द स्क्वायर a plus b होल स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई. सर मेरे को एक चीज थी. हम्म. सर हम एक ये नहीं कर सकते कि सर AC सर BC जो है सर उधर की ओर ले जाए, ताकि सर वो AC माइनस BC का होल स्क्वायर तो सर 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. किसे? AC माइनस बी सर सी. यहाँ सर AC माइनस BC सर 1 सेंटीमीटर है. यहाँ यहाँ यस सर. सर हम अरे, AC सर BC स्क्वायर को उधर ले जाए. और इसके बाद आप ब्लंडर कर दिया, आपने इसे इसके इक्वल कह दिया. यही तो आप सोच रहे हो. सोच के देखो. यस सर. इज इट ट्रू? अरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है? हाँ आपने ओके भी सर लगा आई दिया. फॉरगॉट इट. अरे ये दिक्कत होगी. ये बहुत ध्यान से, ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये तो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट. अगर ये का गलत हो गया, आगे पूरा क्वेश्चन गया ऑफ कोर्स. ठीक है, पूरा प्रॉपर सॉल्व किया, x की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दीजिए, और फिर आप सीख चुके हैं हाउ टू फाइंड दिस. यस सर. Okay, sir. डन. Yes, sir. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. एक कोई ओके भी सर. वैल्यू दे दी, आपको पता है ना क्या करना होगा. बस ट्राइंगल मेथड से इन चारों को निकाल लो, जैसे स्टार्टिंग में हमने सीखा था, और उनकी वैल्यूज को बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Okay, sir. बेस्ड ऑन दिस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, हो सकता है एक दो क्वेश्चन ये हो भी चुके हैं. चलो एक काम यहाँ तक रखो, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस, राइट? Okay, sir. या ओके सर. चलो ठीक है, फिर एंडिंग द क्लास. ओके सर. राइट, ओके, गुड नाइट सर. गुड नाइट.